Good evening, ladies and gentlemen, and thank you for watching N6 TV Canada. We are live at N6 TV. You can watch us also on N6 TV Facebook page and YouTube page. We are live here at N6 TV, and you're watching Match Point. I'm your host Hamza Elahi, and with me is Dr. Adnan Khan, who is a renowned sports analyst from North America, and joining me from Mumbai is Rajan Nayarji, who's the ex-media manager for Team India and has made a lot of name in his times. Still do, and I love his analysis. That's why he keeps on joining us. I really appreciate both of gentlemen joining us. Let's move towards today's headlines. Let's watch our headlines for today, and then we can go about it. और जी आज की हेडलाइन में सबसे बड़ा चर्चा जो रही वो अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के मैच की थी जो कि बेहतरीन मैच गया। किसी के लिहाज से भी हम अब अफ़गानिस्तान को एक ये मैच नहीं कह सकते कि अपसेट हुआ या कोई ऐसा आउट ऑफ द ब्लू हुआ। आई टेक देम एज़ अ फुल वर्किंग टीम और they played better cricket and Sri Lanka was down in all the departments. They couldn't get the board scores on the board, and Afghanistan in the end chased it down well in time, uh, in even the last hour. But they had it all planned up. And after that, the headlines is the controversial text message by the captain of Pakistan team, Babar Azam, was out in Pakistan media all day today and international media, which opens up a more of a Pandora box for PCB. And later on, after that text message saga, the PCB selection committee chairman Inzamam ul Haq, who selected all this team for the World Cup, have resigned after a couple of hours. So two legends came into the news of the Pakistani and the international cricket news, and PCB board has been fully exposed by this, that what is going on behind the scene, and that's why the World Cup tour has been extremely jeopardized by this political and instability in the Pakistan Cricket Board. Let's take our opinion on the headlines. With me is Dr. Adnan. Dr. Adnan, what is your say on the today's headlines? Ji Hamza, thank you so much, and Rajan ji, welcome to the from the Mumbai. Welcome to you in the match point. Afghanistan is creating history in this cricket World Cup, and yes, Hamza told about the controversy. We will move on that, but first of all, Afghanistan obviously created a history and moves on to the fifth place in the points table in the Cricket World Cup 2023. And India's match yesterday, which we couldn't discuss. So the big headline that the most wickets for the India in the World Cup, uh, Mohammad Shami reaches at 40. So he is approaching and he is narrowing the distance with Javagal Srinath and Zahir Khan. Zahir Khan with the 44 wickets is at the top of the Indian list in the World Cup games, and of course Javagal Srinath with 44. But both of them has done this in 23 and 33 innings, while surprisingly Mohammad Shami has been doing this in 13 innings so far. So this was a big headline, and Virat Kohli getting the first duck of his ODI World Cup career in 32 innings. And the next news is also from the Indian camp. Rohit Sharma, he becomes the first player ever to smash the 100 fours and 56s in the single year in the ODI history. So means hitman for a reason, as we say him. And Sri Lanka's cricketer's greatest sporter, Uncle Perry, has been passed away. हमजा अगर आप तस्वीर इसकी शो करा सके हमें इनकी जो अंकल जो बेसिकली ही वाज अंकल पर्सी, इनको हम अंकल पेरी कहा करते थे और इनको मैंने बड़े करीब से देखा है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप ग्रैंड फिनाले में, जहां पे शिकस्त दी थी टीम ऑस्ट्रेलिया को अर्जुना रानाटुंगा और डिसिल्वा की श्रीलंकन टीम ने. So he was at the very moment he was there over there. His presence was there in the Imran Khan's enclosure in the Gaddafi Stadium.
अगर हम प्रोडक्शन टीम से अगर असिस्ट कर सकें और तस्वीर हम देख सकें इनकी, सो इज अ ह्यूज लॉस फॉर द क्रिकेट। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि राशिद खान who was playing his 100th ODI, he's a legend of Afghanistan, and Rashid Khan, no doubt, what could have been the bigger stage for him? I mean, for the Rashid Khan completing the surprise victory for Afghanistan, one of the upsets which Afghanis do not say the upset, they say it the planned victory, but whatever you say. And the next news, if you can show me, Hamza, the video of a NBA owner, we will show the Sacramento King in the America. He is a fan of King Kohli. This is the real face of the cricket and the world cricket. It's been so popular in USA. We can see a small video of Sacramento Kings if we are having in the pipeline. तो क्रिकेट के शदाई जो है वो सिर्फ बरे सगीर में नहीं है, बल्कि वो बर आजम अमेरिका के अंदर भी हैं, चाहे वो अमेरिका हो या कनाडा Hey हो। Virat, क्रिकेट के सपोर्टर्स जो हैं congratulations, you उनकी guys कमी won यहाँ पर again, नहीं and है। you're really messing तो with my सैक्रामेंटो sleep किंग्स because I के live जो in Northern California ओनर हैं वो खुद and I विराट wake up कोहली के फैन really निकले और early every day to 17 watch नंबर the की boys in blue, शर्ट and you keep लेके winning and winning. You beat जी England today. Congrats! And जी माफ कीजिएगा I 18 own the नंबर की Sacramento शर्ट Kings, and लेके I got your वो own सैक्रामेंटो के shirt for होम you. जो So I'm उनका hoping to see स्टेडियम you है soon. जहाँ उनका Maybe होम रन when होता है you win वहां it वो all लेके and you खड़े lift the हुए हैं और trophy, उन्होंने I'll वो get to see तस्वीर you. वहां पर But good खिंचवाई है और luck छोटी सी वीडियो and बनाई है। Jai Ho! Hey Virat, congratulations, you guys won again, and you're really messing with my नहीं, आई sleep थिंक because I आवाज live हमें in नहीं Northern आ रही। California and I wake up really early every day to watch the boys in blue, and you keep winning and winning. You beat England today. Congrats! And I own the Sacramento Kings, and I got your own shirt for you. So I'm hoping to see you soon. Maybe when you win it all and you lift the trophy, I'll get to see you. But good luck and Jai Ho! Hey Virat. जी, और जहां तक आपने कंट्रोवर्सी की बात की तो मुझे लगता है कि वो मुनीर नियाजी कहा करते थे ना, उंज भी रावां औखियां सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सी, कुछ सानों मरण दा शौक भी सी। तो आई थिंक बाबर आजम इज हैविंग अ रियल डिफिकल्ट टाइम एंड पाकिस्तान इज हैविंग अ रियल डिफिकल्ट टाइम। आई एम हैविंग रियल सिंपैथीज विद बाबर एट दिस टाइम। लेकिन जिस किसी ने भी ये हरकत की, और आई आई थिंक इसको जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। दिस इज वेरी नेगेटिव फेस, एंड द नेगेटिव फेस ऑफ व्हाट यू कैन से सहाफत का जो एक बैड पिक्चर है, ये आप उसे कह सकते हैं कि ये बहुत ही नेगेटिव में लेता हूँ और बड़ी घटिया हरकत थी ये। और इसकी जितना भी इसको शन किया जाए सोशल मीडिया पे और टेलीविजन के ऊपर वो कम है। बाबर आजम इज ऑफ कोर्स अ स्टार ऑफ पाकिस्तान, इज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने एक दिन में अपना ये नाम नहीं बनाया, फॉर अ रीजन ही इज एट द नंबर वन पोजीशन। तो ये जो भी हरकत थी ये बहुत ही शर्मनाक थी, एंड शेम ऑन योर सेल्फ हु हैज डन इट ऑन द सोशल मीडिया। रजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मुंबई से, टीम इंडिया के साबिक मीडिया मैनेजर। रजन जी, हेलो टू यू, गुड इवनिंग और बल्कि गुड मॉर्निंग इन इंडिया। Well, much appreciated your warmth, affection of both Hamzaji and yourself. And it has been a great pleasure talking not only on Indian cricket but also about the other nations, because this is one forum where, besides all the hype created in the media about India, I also love to understand what happens to cricket and its status worldwide. The sorry plight I still feel, I always maintained one word which I got it from 25 years back, that Pakistan is one of the most mercurial, brilliant, individual, talented team. However, the saddest part for me is that I am still not able to understand that such a wonderful team cannot get its full potential due to some serious administrative lapses, confusion between the administrators and the respective teams and the players. That really bothers me. And this incident which you quoted once again underlines my fear, and also goes back to Bob Woolmer time when I was saddened by that such a good team at that point of time. And you end up every time, even for the food which a five-star hotel offers, why should be there so much news about eating?
We are coming here to play World Cup. Even if the team requires, quietly people can deliver the food. When I was in South Africa, we also loved biryani, and South African excuse me, South African people, knowing Irfan Pathan and others, they used to bring good food to us. And but as a media manager, I never went and shouted in the park saying that we got good biryani to eat, do this, that. Main focus is let us play cricket. Cricket and cricket alone. And if there is a problem, it should be sorted out either before or after, so that the good quality players are able to concentrate and play good quality cricket and give great solace to the nation, the administrators, and the player and their families. Imagine the situation now. The team are going to, you were so much happy yesterday, trying, you are putting your heart to pep up the Pakistan team, and the next day this news comes up. I don't want to delay further. I feel sorry that such incidences should be once for all stopped and concentrate on the game. Second point, go ahead, sorry, go ahead. That's why the expertise are over there. रजन जी हमारे साथ, उन्होंने बड़ा जबरदस्त से उसको एक्सप्लेन किया कि how the things should happen and how the things should not happen. और उन्होंने इंडियन ड्रेसिंग रूम के बारे में बताया कि देखिए कि किस तरह इंडियन टीम सॉर्ट आउट करती रही चीजों को. तो these are not the things to highlight. These are the things to sort out behind. और जो भी है इसको मीडिया पे मंजर आम पे लाना, ये कहीं भी नहीं देखा गया और ना ही कोई इसको हमायत में है और ना ही कोई इसको सपोर्ट करता है इस किस्म के नेगेटिव टैक्टिक्स को. एनीहाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट टू द गेम, आज की गेम की तो बात करेंगे, अभी पोस्ट मैच बात करेंगे, लेकिन चूंकि एक छोटी सी बात नहीं हो सकी, रजन जी भी हमारे साथ हैं. रजन जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि जो बड़ी जबरदस्त फतह थी इंग्लैंड के ऊपर भारत की, और भारत ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में 10 विकेट से हारा था, तो वो भारतीय जो फैंस हैं उनके ऊपर अभी भी वो जो विक्ट्री थी वो मंडला रही थी. तो होपफुली उनके सर से जो है वो जो टल गई होगी, वो जो चीज थी एक आई हुई थी, एक बादल आए हुए थे उस शिकस्त के जो 10 विकेटों से है. तो उम्मीद है कि वो रिजॉल्व हो गए होंगे. इंडिया डिड इट ब्रिलियंटली ऑन देयर डे. और इंग्लैंड की टीम, अब टीम ऑस्ट्रेलिया और टीम श्रीलंका के बाद वो दुनिया क्रिकेट की तीसरी टीम बन गई है कि जो डिफेंडिंग चैंपियंस थे एंड दे फेल्ड टू रीच द नॉकआउट्स ऑफ द नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप. उससे पहले ये अनवांटेड कारनामा टीम ऑस्ट्रेलिया दे चुकी है 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जो इमरान खान की टीम पाकिस्तान ने जीता था. और श्रीलंका ये कारनामा अनवांटेड सर अंजाम दे चुका है 1999 में, कि जो वर्ल्ड कप टीम ऑस्ट्रेलिया, स्टीवन वॉ की ऑस्ट्रेलियन टीम ने वसीम अकरम पाकिस्तान को लॉर्ड्स में शिकस्त देने के बाद हासिल किया था. इन स्पाइट ऑफ द अमेजिंग रन सो फार, इंडिया की टीम की एक बड़ी 2-3 पॉइंट्स बड़े अच्छे अच्छे थे, मैंने कहा वो जरूर डिस्कस करूंगा कि इंडिया की टीम इतनी मर्क्यूरियल टीम, जिसके अंदर दुनिया के नंबर 1 बैटर मौजूद है, जहां पर शुभमन गिल, रोहित शर्मा, रोको मौजूद है, कोहली मौजूद है, विराट कोहली हु इज अ मास्टर ऑफ द चेस. देखते में आया कि अमेजिंग रन के बावजूद इंडिया ने 14.2 ओवर्स में 50 मुकम्मल की अपनी, जो बड़ा हैरान कुन था. शायद पिच के अंदर भी कुछ दम था, शायद इसीलिए ये स्लोएस्ट टीम 50 है फॉर एनी टीम इन द वर्ल्ड कप 2023 बैटिंग फर्स्ट. इसका कोई रिकॉर्ड अभी नहीं मिलता. ऐसे भी रजन जी से छोटा छोटा पॉइंट लेंगे. और 229 was a very memorable total for the team India, क्योंकि 229 मुझे लगता है क्योंकि मैजिक है इसके अंदर, ना एक नीचे और ना एक ऊपर. 229 इज द सेम फिगर के जो नीदरलैंड की टीम ने स्कोर किया था और साउथ अफ्रीका के खिलाफ डिफेंड किया था. हैरत अंगेज तौर पे भारत ने भी सेम नंबर को डिफेंड किया है. एंड द टू लोएस्ट सक्सेसफुली डिफेंडेड टारगेट्स बाय द टू टीम्स इज नाउ द 229. एक जो है वो कोलकाता में हुआ और दूसरा लखनऊ में हुआ, जो भारत का मैच था. इंग्लैंड की जो बैटिंग वोज है उन पे बात करना चाहूंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंगली मैं कुछ सम्स लेके आया था. रजन जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप जब लॉर्ड्स में हुआ, पिछले 2019 का जो ग्रैंड फिनाले था वो 14 जुलाई 2019 को खेला गया.
और उसमें इंग्लैंड के जो आखिरी 3 विकेट थे, जिसमें जोफ्रा आर्चर शामिल थे, आदिल राशिद शामिल थे और मार्क वुड, आई थिंक मैं गलती पे नहीं हूँ तो वुड्स थे उनके जो 11th मैन थे। तो नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 जो जोफ्रा आर्चर थे वो गोल्डन डक पे गए पहली बॉल पे, और आदिल राशिद जो थे वो डायमंड डक पे गए विदाउट फेसिंग बॉल, और मार्क वुड वो भी विदाउट फेसिंग बॉल। तो जहां से उनका वो बैटिंग वोज खत्म हुई थी पिछले वर्ल्ड कप की, आल्दो के वो वर्ल्ड कप जीत गए, तो वो बैटिंग वोज उनकी जो नॉर्मल है वो वहीं से शुरू हुई, जहां से उन्होंने अपना छोड़ा था सलसल, वो वहीं से छोड़ दिया। रोहित शर्मा की छोटी सी बात करूंगा जी, भारतीय कप्तान हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं। India's fifth and overall the 20th batsman to score 18,000 runs in the ODI cricket। इनके बारे में बताया था कि इनको 19 रन चाहिए और आखिरकार रोहित शर्मा ने वो लैंडमार्क जो है वो अचीव कर लिया। इसके अलावा he was playing his 100th match across all formats as a captain among the 50 captains who led their team for the 100 or more international cricket matches। अब शर्मा जी का जो विन परसेंटेज मेरे सामने लिखा आ रहा है वो 73.74 है। वुड यू बिलीव 73.74 विन परसेंटेज है, जो किसी भी किस्म के कप्तान का जब से क्रिकेट शुरू हुई है उनका, जिन्होंने 100 मैच खेले हो, उनका सबसे बेस्ट परसेंटेज है। एंड दिस इज द real depth of Team India, that why we say 6 out of 6 leading from the front, bowling, batting, fielding, they are in the excellent run towards the World Cup। जी रजन जी, क्विक वर्ड्स और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे श्रीलंका अफगानिस्तान। Well, you have said absolutely well. I will begin by saying you rightly mentioned that 2019, the three ducks or the poor end. But in the final analysis, New Zealand was very unfortunate that Ben Stokes' shot deflected off the bat and it ended in the boundary where England ultimately won the World Cup. But then the sorry plight of the New Zealanders, they were tremendous in their sporting culture, sporting background, and see the as you rightly said today New Zealand in this tournament began brilliantly. England began poorly, and the people who taught the world how to play cricket, they are languishing in the lowest order. England is no more the same force which I have seen personally in Mumbai. India, on the other hand, is a wonderfully balanced side. I would not just say by saying balanced side. The preparation which has gone into the balanced side is for the last 4 years, with Ravi Shastri initially handling a great team management system where we inculcated the team management ethos, followed by Rahul Dravid taking up some good disciplined approach. Virat Kohli is in between indifferent form. The Indian selectors stuck to him. Rohit brought out the best with a great sacrifice for the Indian team. And look, not only their batting, even though some of their middle order is still slightly dicey, but Rahul came back after a poor run of success after recovering from his injury. Now he bats as an anchor man in the middle. And I will like to state that you mentioned Kohli's first zero in the World Cup. This World Cup has shown three great batsmen. Steve Smith's first zero, Williamson, if I'm not wrong, please correct me. And the third is Joe Root. What else do you need? And Steve Smith, sorry, it was not Ken Williamson, it was Steve Smith. Steve Smith, Virat Kohli, and the third name I have already mentioned. So, what does it indicate? Top man also goes for the Golden Duck, but the overall team performance. And last but not the least, Indian fielding has improved leaps and bounds thanks to Ravi Shastri's earlier effort. Now, definitely follow up by Dravid, and look at the evolvement of Yadav, Kuldeep Yadav, who was not in the original scheme of things. He was dropped for 2, 3, 4 series. But he was motivated, brought back into the mainstream in less than 1.5 years. And Chohel, the only leg spinner India could have brought. And see the difference.
All teams in the world carry one leg spinner except India. Lot of people doubted the intrusion of Kuldeep Yadav, but he proved more than a point that India has a balanced, varied attack, which very few people had it, very few teams had it, and I look forward yet 229 against Netherlands. Sorry if I am wrong, please correct me. 220. The same team had to defend 229. India came back and got that victory under their garb. But look at India in 2011 World Cup when New Zealand shot them out for 92. How many people remember it? So guarding 123 in the World Cup final as well as guarding 229, India had played a tremendous role for which a complete team effort is required. And I feel this is where some of the teams, including England, Pakistan, has gone array, and Netherlands and Afghanistan has brought out their ultimate best. Afghanistan, Pakistan taught them how to play, but they improved upon it by playing continuously in India, in Uttar Pradesh, and today they have established themselves and are now in the fifth of top order. Look at yesterday how they batted, and more we will talk on that. At the moment, I am restricting myself. Yes. The Sri Lanka batted first. Nisanka made 46, which was the highest of today's from the Sri Lankan point of view and Sri Lankan batting side. Kushal Mendes, the captain, made 39 of 50 balls, stayed with him for a little while until he went out, and after that, Sadira Samaraweke made 36. No major contribution after that. Theekshana came after that. Angelo Matthew played a little cameo, but he was out by Fazlul Haq Faruqi 23, and Fazlul Haq Faruqi after that named as the man of or player of the match as well. In terms of Afghanistani scorecard, they looked comfortable. Rahmat Shah made 62, Hashmatullah Shahidi made 53, and Azmatullah Omrazai made 73 runs. Still, the player of the match was bowler Fazlul Haq Faruqi. They were in control of the match at all times, and as we saw, their coach Jonathan Trott had a big whiteboard right next to him, and he had those hours and everything lined up that in this hour we are going to achieve this run. How managed and well equipped they are with their plan, and their plan was actually getting implemented in the ground. It was a pleasure to seeing that game. Dr. Nan, your take on it. हमजा वो बोर्ड भी रेडी कीजिएगा कि वो बोर्ड हम जरूर दिखाएंगे अपने जो देखने वाले हैं कि वो बोर्ड जो है वो क्या कर रहा था ड्रेसिंग रूम में और उनके डग आउट्स में अमंग द 5 एशियन टीम्स इन द वर्ल्ड कप 2023 अफगानिस्तान की टीम जो है वो सेकंड बेस्ट एशियन टीम बन के सामने निकली है जो मैंने कभी नहीं सोचा था आई नेवर थॉट आफ्टर इंडिया राइट नाउ दिस इज द बेस्ट एशियन टीम इन दिस करंट वर्ल्ड कप अब अफगानिस्तान की जो टीम है apart from the top 8 they have defeated now 3 full members teams in the World Cup edition. They won against England, they won against Pakistan, and now they've won against Sri Lanka. So 3 world champions, they knocked out 3 world champions, and it's not a joke. What a tournament for Afghanistan. And if they had won the match against the Bangladesh, so they would have been better placed even for the semi-final qualification. क्योंकि अभी मुझे लगता है कि उनके पॉइंट्स जो हैं अगर मैक्सिमम विन्स होती हैं तो 8 पे रुक जाएंगे, लेकिन अगर ये वो मैच मिस ना करते तो नो डाउट कि जिस तरह फुटबॉल के वर्ल्ड कप में कभी कैमरून घुस रहा होता है क्वार्टर फाइनल में और कभी टर्की और साउथ कोरिया आ रहे होते हैं वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, या क्रिकेट में एक दफा कीनिया आ गई थी, कीनिया की टीम बड़ा अनएक्सपेक्टेडली, तो ये वो बड़ा अनएक्सपेक्टेडली था, लेकिन ये बड़ा एक्सपेक्टेडली अराइवल हो सकता था. तो माइट भी एक टाइम पे अफगानिस्तान को बहुत अफसोस हो जो बांग्लादेश का लॉस था, बट दिस इज क्रिकेट. बांग्लादेश टीम इज ऑल्सो हियर टू प्ले क्रिकेट. अब अफगानिस्तान की
टीम ने डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को शिकस्त दी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 के चैंपियंस को शिकस्त दी और 96 के चैंपियंस को, एशियन जायंट्स को, श्रीलंका को शिकस्त दी। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको कि ये जो बैटिंग थी और बॉलिंग थी, इसको तो छोड़ दें। मुझे ये लगता है कि जो थिंक टैंक है और जो दिमाग है अफगानिस्तान के कैप्टन का, वो बहुत आला किस्म का था, बड़ा कारगर साबित हुआ। और उन्होंने जो प्लान किया, जब उन्होंने टॉस जीत के, क्योंकि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, बॉलिंग, तो वो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान जो है वो पहले बैटिंग करेगा और बाद में डिफेंड करेगा। लेकिन अफगानिस्तान ने रिस्क लिया। आपने देखा कि उनकी स्ट्रेटजी कैसे चेंज हुई है। कुछ अगर आप साल पहले देखें, 1 साल या 2 साल पहले, रजन जी ज्यादा बेहतर बताएंगे मुझसे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इनका बैटिंग कैंप, उसके अंदर कैओस पड़ जाता था। सेम लाइक द पाकिस्तान, 1 2 3 इनके बड़े मेन है, काम करते हैं, लेकिन अगर एक बंदा नहीं चलता तो कैओस पड़ जाता है। आई थिंक कि पाकिस्तान जैसी टीम को इनसे लर्न करना चाहिए कि देखें, आज इनके ओपनर क्या नाम था, गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज 0 पे आउट हुए। और गुरबाज के 0 पे आउट होने के बाद अगर पाकिस्तानी ओपनर 0 पे आउट होगा तो अचानक पैनिक क्रिएट होगा। लेकिन जो चीज जोनाथन ट्रॉट ने इनके अंदर डाली है दिमाग में, दैट इज द कॉन्फिडेंस। वो पैनिक नहीं करते। उनको बताया गया कि स्टे एट द विकेट, विकेट्स इन हैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि किसी भी टाइम वो जो व्हाइट बोर्ड था उसमें दिखाया गया कि 2 जगह पर अफगानिस्तान अपने मुकर्रा हदफ से पीछे था, जो जोनाथन ट्रॉट ने मैयर किया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद उनको एक ही ताकीद थी कि विकेट्स लूज नहीं करनी और पैनिक नहीं करना। अच्छा, इतने विकेट्स लूज करने के बाद भी गुरबाज का अर्ली, जितनी भी मैं तारीफ करूं जरदान की, और उसके बाद डाउन हशमतुल्लाह शाहिदी, जो इनकी तकरीबन आई थिंक के 111 की पार्टनरशिप हुई जो रन्स की, आप देखें कि उसमें इन्होंने तकरीबन कोई 30 या 25 डॉट बॉल्स खेले हैं। जबकि श्रीलंका की टीम इतना अच्छा स्टार्ट देने के बाद कुसाल मेंडिस, निशांका और आई थिंक सिदारा, और इनकी तीनों का ऊपर से स्कोर हुए 1 2 3 के, पार्टनरशिप भी हुई। बल्कि निशांका बड़े अनलकी रहे कि अपनी 50 मिस कर गए। लगातार वो हर मैच में 50 या 100 कर रहे हैं। अपना 5वां मैच मिस कर गए, वो वाहिद टॉप ऑर्डर हैं जो स्कोर कर रहे हैं। तो आप देखें कि उसके बाद वो अनरेस्ट हो गए जब वो विकेट्स गिरी। और उसके बाद उन्होंने ओवर नंबर 11 और ओवर नंबर 40 के बीच में दे प्लेड 87 डॉट बॉल्स। जबकि उसी दौरान ओवर नंबर 11 और ओवर नंबर 40 के बीच में अफगानिस्तान प्लेड 37। दिस इज द डिफरेंस ऑफ द डॉट बॉल्स, कि पाकिस्तान वहां पर डॉट बॉल्स खेलता है और प्रेशर में आता है। लेकिन ये स्ट्रेटजी चेक करें आप, कि उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया, स्ट्राइक रोटेट करते रहे। और उसके बाद मुझे तो ये लग रहा था जरदान को देख के, कि जिस तरह मैं देख रहा हूं कि एक ट्रेंड प्लेयर जो इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहा हो, काउंटी क्रिकेट, अंडर द काउंटी गेम्स, बहुत ही उनकी नपी तुली शॉटें, और जो टेस्ट मैच बुक्स में जो शॉट होती हैं, किसी भी टाइम मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये कोई एग्रेशन दिखा रहे हैं या कोई पैनिक के अंदर है कि मैंने ये रन चेज करना है या ये वर्ल्ड कप गेम है। और देखें, रहमानुल्लाह गुरबाज और जरदान, इन और हशमतुल्लाह शाहिदी, इनके खेलने का स्टाइल टोटल डिफरेंट है। अगर आप गुरबाज पे आ जाए तो ही प्लेज लाइक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, लाइक अ डेविड वार्नर फैशन, असॉल्ट कर दो, मार्क ग्रेट पैच, सराज जय सूर्या, उस स्टाइल में खेलते हैं। लेकिन जरदान बड़ा समझ के खेलते हैं, उन्होंने इनिंग्स को स्टेबल किया, और हशमतुल्लाह शहीदी ने उनको सपोर्ट किया और बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, और फिर बड़े रेगुलर तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया गेम को। और मैं ये हैरान हूं कि वर्ल्ड कप से पहले ऐसा कोई, मैंने अफगानिस्तान की टीम के अंदर ऐसी स्ट्रेटजी नहीं देखी। अचानक यकायक क्या चीज उनके अंदर आई कि उनकी टीम पूरी तब्दील हो गई और इतने प्रोफेशनल तरीके से वो चेज कर रहे हैं। तो आई थिंक दीज आर द स्ट्रॉन्ग साइंस पाकिस्तान टीम के लिए कि हाउ टू प्ले क्रिकेट। उन्होंने पाकिस्तान को, देखें, पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। जंग लगी हुई है इनके मुल्क में, कभी इनके मुल्क के हालात स्टेबल नहीं हुए, कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं है, कोई ये लीग्स, अब ये प्लेयर इनके लीग्स में है, 2020 लीग्स में, लेकिन कोई वैसा फॉर्मेट नहीं है अपनी इनकी प्रोफेशनल लीग का, इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग है या आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग। उसके बावजूद भी ये अच्छा खेल रहे हैं।
अच्छा, एक और बड़ी चीज जो इनके अंदर वो ज्यादा रोशनी डालेंगे इस पे रजन जी, वन मेजर फैक्टर बिहाइंड देम इज अजय जडेजा। शायद बहुत से लोगों को मालूम ना हो कि हु इज अजय जडेजा। अजय जडेजा इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड्स ऑफ टीम इंडिया के जो भारत के लिए 90 की दिहाई में खेला करते थे। उस दौरान अनफॉर्चुनेटली भारत वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सका। ये वही आ रहा था जब राहुल द्रविड़, सौरव गंगूली, वेंकटेश प्रसाद और जवागल श्रीनाथ ऐसे प्लेयर हुआ करते थे जिन्होंने और सौरव गंगूली जिन्होंने जीत की उमंग डाली इंडियन टीम में। लेकिन इंडियन टीम अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। लेकिन उन्होंने एक विनिंग कॉम्बो पे डाला और ये पहला मौका था जब इंडियन टीम अपनी अवे सीरीज भी जीतना शुरू हो गई। उन्होंने इंग्लैंड को लॉर्ड्स में शिकस्त दी, अपने घर से बाहर भी, क्योंकि पहले उनको टाइगर्स एट द डन कहा जाता था। तो अजय जडेजा उसी ब्रीड के नंबर 6 है। लोअर मिडल ऑर्डर है, और मिडल ऑर्डर कह लें या लोअर मिडल ऑर्डर कह दें, जो एग्जीक्यूट करते थे लांस क्लूजनर की तरह। उनको एक टारगेट होता था कि 19 ओवर्स 50 रन, 20 बॉल्स 60 रन, और उसको एग्जीक्यूट करते थे। वेरी हैप्पी करेक्टर। कभी उनको मैंने टेंस होते हुए नहीं देखा। शक्ल से जब दिखाते थे जयसूर्या, माफ कीजिएगा, कप्तान सौरव गंगूली को या जवागल श्रीनाथ को, तो वो टेंस दिख रहे होते थे। इवन सचिन तेंदुलकर को मैंने टेंशन में देखा है कि वो अपने दांतों में नाखून चबा रहे होते थे। मगर अजय जडेजा को मैंने कभी टेंस नहीं देखा। हैप्पीली वो च्युइंगम चबा रहे होते हैं, हंसते हुए। अगर बहुत से लोगों को याद होगा कि 1996 का क्वार्टर फाइनल जो बेंगलोर के चन्नास्वामी में खेला जा रहा था, और वसीम अकरम्स पाकिस्तान एंड आमिर फिल्म्स पाकिस्तान वर फेसिंग देम आफ्टर 10 डॉट ईयर्स, और वहां पर सईद अनवर के आउट होने के बाद जो केओस बर्पा हुआ पाकिस्तान कैंप के अंदर, तो उस केओस के एक जिम्मेदार अजय जडेजा थे, जिन्होंने बड़ी एक कंट्रोल्ड इनिंग्स पाकिस्तान की चल रही थी, और उसके बाद आखिरी उन्होंने आई थिंक 7-8 ओवर्स में एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी पाकिस्तान के स्पीड स्टार और उस वक्त के फास्टेस्ट बॉलर वकार यूनुस के अगेंस्ट। तो देखिए, जो करेक्टर होता है वही करेक्टर वो लेके आ रहे हैं अफगानिस्तान टीम के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई, तो इसका मकसद ये था कि जोनाथन ट्रॉट और अजय जडेजा ये एक वो जीत की थ्योरी जो है इनके अंदर डाल रहे हैं, और उनको बताया गया है कि नथिंग एट स्टेक। वो फियरलेस गेम खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी जीत हुई है, इनकी पहली जीत इंग्लैंड के खिलाफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। पाकिस्तान के खिलाफ ये बाल बाल बचते रहे, नैरो एस्केप होते रहे, और आपको पता है कि इनकी रेवलरी भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। वो एक प्लेयर से लेके छाबड़ी वाले तक जो है वो बहुत इंटेंस हो चुकी है ये रेवलरी। तो जो पाकिस्तान को उन्होंने हराया है अभी, और 4 दफा बचने के बाद, ये हर दफा रोते धोते थे और रो के बैठ जाते थे, और आखिर में कभी नसीम शाह गेम ले जाते और कभी आसिफ ले जाते। तो इसमें इनमें जो कॉन्फिडेंस आया है पाकिस्तान को हराने के बाद, आई थिंक दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड द एक्स फैक्टर के जोनाथन ट्रॉट, अजय जडेजा एंड द विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर थ्रू टू देम विच दे हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ। जी रजत। आपने काफ़ी हद से कवर किया है। मैं इसमें कुछ स्पाइस डालना चाहता हूँ। आपने अजय जडेजा जी का नाम लिया। आई हैव नोन हिम एज ए फ्लैम्बॉयंट एंजॉयबल क्रिकेटर। पाकिस्तान का मैच जो आप रेफर कर रहे हैं बेंगलोर, उस दिन मैं वहाँ था, और अजय जडेजा वॉज नॉट जस्ट एक फैक्टर, ही जस्ट eased the dressing room with his flamboyant cricket against Wakar Yunis's pace and Wasim Akram. It was there nothing. It was not so much technical those days, nor so much of support staff behind. But the natural instinct, the natural flair, and the natural grace and style that pushed the apple cart of the Pakistanis, who looked in blazing form with Amir Sohail and Saeed Anwar. And when Saeed Anwar bats, he is a true champion. I rate him very, very high in the Pakistan scheme of things. Now, coming back, not going further ahead on that, the second side is that you spoke about Jonathan Trott. Yes,
He is a major factor. But you know where does it come from? Jonathan Trott suffered mental sickness on the Australian tour and he came back. Imagine, he came back from the tour, never wanted to play. However, that experience of mental health, how to stay, how to live with cricket, he understood with his personal experience. He has shared that experience with the Afghanistan team and wrote it how to go about in their professional approach to cricket. Third, the most interesting fact, when they were not having their team to play well, they were being guided properly. And they did not, as you rightly mentioned, in their country where they had no proper infrastructure to play cricket, they briefly migrated to play cricket with their team near Noida, Uttar Pradesh, and they were practicing in their newly built stadium, wherein Ajay Jadeja also was doing a good amount of liaising for them, helping them through his close proximity near Delhi. There are three factors. One more final factor is the team, as you rightly mentioned, they were panicking at most of the stages, except maybe in the top three batters. Now you see Afghanistan team playing. They play that it is a more mature team. They look more better. They look more calm. And all this contributed, whether it is Jonathan Trott, whether it is Jadeja, whether it is getting infrastructure facilities to practice at least a couple of years. And they played lot of matches before coming to this World Cup. Their stint in India, not only in practice matches, regular matches, and also playing international cricket one day all contributed to their growth as a team and their development as a team, maturity as a team, and finally, their team performance is not only impeccable but they have shocked everybody in this world that how maturity can grow as fast as Afghanistan. And let me tell you one thing, if you look back at their history, they never allowed anybody to dominate them because they are born fighters, their blood is full of fighting spirit, and they have proved it on the sporting field. Mark my words, they are a team to reckon with, and not only their spinners are outstanding. Let them have somebody bowling 150, they will blast out many opponents. And new batters are coming. दो बातें ऐड करना चाहूंगा। एक तो आपने अफगानिस्तान की विक्ट्रीज की बात की कि वो इस वर्ल्ड कप से पहले हम उनकी विक्ट्रीज देख रहे थे, और एक स्पिनर की बात, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अफगानिस्तान की जो ओडीआई विक्ट्रीज है, अगर मैं बताऊं आपको जी, अगेंस्ट टेस्ट प्लेइंग नेशंस, they have got the 18th against Zimbabwe, which are maximum, 16 versus Ireland, 6 versus Bangladesh, 4 versus Sri Lanka, 3 versus वेस्ट इंडीज और 1 अगेंस्ट इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। और इनमें से जो 8 विन्स हैं वो केम आफ्टर आयरलैंड बिकेम अ टेस्ट प्लेइंग नेशन इन मई 2018। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये कल को गुजरा है मई 2018, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये ज्यादा विक्ट्री जो इनकी 8 है वो इसके बाद है। एंड दे हैव अ टाई गेम वर्सेस इंडिया, और ये इनकी 76th ओडीआई विन थी। और तो अब ये बड़े करीब जा रहे हैं अपने टेस्ट स्टेटस की तरफ भी, कि अगर आईसीसी इनको कंसिडर करती है। आप बांग्लादेश का तनासब देखेंगे, जब वो पाकिस्तान से हारे थे 99 का वर्ल्ड कप, और उनकी विन परसेंटेज देखें ओडीआईज की और इनकी, तो बड़ा आपको मेजर डिफरेंस नजर आएगा। जिस तरह से ये स्नीक थ्रू कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दे विल गो वेरी फास्ट, जो इनकी पेस है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्पिन अटैक की रजन जी ने, रजन जी आपने पता नहीं आज नोट किया नहीं किया, एक बड़ी मेजर चेंज थी पाकिस्तान के खिलाफ। देखें इतना इंटेंस रेविलरी है, इंटेंस मैच हुआ, वहां इन्होंने एक ट्रम्प कार्ड डाला था पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान को पड़ गया, उल्टा पड़ गया, क्योंकि उनको मालूम था कि बाबर
मैं नूर खान की बात कर रहा हूँ कि खेले। और उनको मैंने आपको मेरे टॉक शो को पुराना लेके जाइए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने एक दिन पहले भी बोला था पाकिस्तान फील्स दैट दे कैन blast their opponents with pace, but Afghanistan introduced a fourth young spinner who plays IPL and who was trained by Rashid Khan. That is where Mir of Pakistan, according to me, should have played most of the matches. By the time the fag end of the tournament comes, he would have been more matured, more useful for Pakistan than Shadab. अच्छा, अब मुझे ये पता है रजन जी कि ये बहुत बड़ा फैसला नहीं था कि नूर खान ही वाज शाइनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। पाकिस्तान के बैट्समैन उनकी स्पिन समझ ही नहीं पा रहे थे, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स और एक विनिंग स्पिन कॉम्बिनेशन चार Perfect. बॉलर्स का, उसको आज रेस्ट करा के आज ये कितना बड़ा डिसीजन था हशमतुल्लाह शहीदी और कोच जोनाथन ट्रॉट का, दैट अमेज्ड मी। वो डालते हैं उनको, नूर को आज बिठाते हैं, ये फैसला कितना बड़ा था और किस तरह से किया गया ये मुझे बताएं। और डालते हैं वो उसको फारूकी को, और फारूकी मैन ऑफ द मैच हो जाता है, वो 4 विकेट ले जाता है। तो दैट वाज आपने मेरा बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। मेरे विचार मैं भूलने के पहले आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंग्लिश में एक वर्ड है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, जो ऑस्ट्रेलियंस करते थे। और मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, आप ट्रैक रिकॉर्ड में स्टैटिस्टिक्स इतना रखता नहीं हूँ, बट याद मेरी बड़ी तेज है, इसीलिए मैंने आपको बताया हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया कि वो टेस्ट मैच के प्लेयर को कोशिश करते दूर रखे वनडे के टाइम। वो फिर उन्होंने नया सिस्टम शुरू किया। T20 जब डेवलप होने लगा, T20 की टीम पूरी अलग रहती है उनकी। हम क्या करते हैं, उसी रगड़ से उसी प्लेयर को टेस्ट खिलाते हैं, उसी को वनडे खिलाते हैं, उसी को T20 खिलाते हैं, और वो फॉरेन लीग में भी जाके मरता है। तो उसमें क्या होता है कि यू आर एक्सपोज्ड एट एवरी स्टेज। आजकल कंप्यूटर एनालिस्ट हैव रिस्ट्रिक्टेड ऑल योर एक्स्ट्रा स्किल्स। पहले जमाने में हाइडिंग फैक्टर होता था, अभी काय का हिडन फैक्टर है। देर इज एवरीबडी सीन बाय एवरीबडी एट एवरी प्लेस। आप दुनिया भर लीग खेलने जाते हो, आज राशिद खान भी बॉलिंग करते हैं, तो जब वो फ्रेंचाइजी लीग में बॉलिंग करते हैं तो वो जिस टीम में खेलते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं। उनके खिलाफ जो बैट्समैन प्रैक्टिस करता है वो उनके खिलाफ मैच खेलता है नेशन के लिए। All this contributes in a big way, and Afghanistan had followed the policy of horses for courses, and they are successful. Why can't other teams do it? Other teams, I mean, look at South Africa. They have been Shamsi. They have brought Keshav Maharaj. They were playing them for 2 years, and they have got success. That's all I can say here. खेलने जा रहा है बांग्लादेश से कलकत्ता में। लेकिन उससे पहले छोटी सी फाइनल टच दे दूं, मैं आपको बता दूं श्रीलंका का कि एक्सीलेंट एफर्ट बाय अफगानिस्तान, लेकिन श्रीलंकन टीम शुरू में बहुत अच्छा खेली, लेकिन मालूम नहीं कि क्या चीज उनको मुश्किल में ले आती है। और टीम पाकिस्तान की तरह उनके 1-2-3 एक अच्छा स्टार्ट देने के बावजूद ये इस टूर्नामेंट में सेकंड टाइम हमने देखा क्रिकेट वर्ल्ड कप में कि जस्ट लाइक द टीम पाकिस्तान, दे आर शैटर्ड आफ्टर मेकिंग अ गुड स्टार्ट। निशांका, पतुम निशांका, जिन्होंने आज अपनी 5th कंसेक्टिव 50 मिस की। हमजा ने आपको बताया था कि 46 रन पे आउट हुए, 4 रन शॉर्ट थे। अगर वो हो जाता तो ये ओनली स्टीव स्मिथ ने 2015 में किया हुआ है, विराट कोहली ने 2019 के वर्ल्ड कप में किया हुआ है, टू मेक द 5 कंसेक्टिव हाफ सेंचुरीज। अगर आज निशांका 4 रन और बना लेते तो वो विराट कोहली और स्टीवन स्मिथ का 2015 और 2019 का रिकॉर्ड बराबर कर लेते, और आगे चांस था कि वो अगले मैच में ये रिकॉर्ड ब्रेक भी कर सकते थे। कुशाल मेंडिस की बात करूंगा जो उनके कैप्टन है, कि वो इज नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बाबर की तरह उनका बल्ला भी रन्स नहीं उगल रहा। मालूम नहीं कि बल्ले को किसने पकड़ा हुआ है, क्यों शिकंजे में लिया हुआ है, या क्या पॉसिबिलिटी है, कि क्या मुश्किल है कुशाल मेंडिस को। वी अ वंडरफुल बैट्समैन। मैं आपको बताऊं अगर आपको कि इन दिस वर्ल्ड कप टूर ऑफ इंडिया से पहले पहले आफ्टर कैप्टेंसी, पहले मैं आपको बताता हूँ बिफोर कैप्टेंसी मेरे पास जो स्टैट आया है। बिफोर कैप्टेंसी आपको मैं बताता हूँ, मेंडिस का स्कोर 122 ऑन 77 बॉल्स,
76 on 42 balls, 158 on 87 in the warm up, 23 छक्के लगा चुके थे ये, माफ कीजिएगा। और जो ही कैप्टेंसी मिली, कैप्टेंसी के बाद 9, 11, 11, 39 और एक भी छक्का नहीं लगाया अभी तक। सेम ही इज इन द बूट्स ऑफ बाबर आजम। जब तक कप्तान आगे नहीं बढ़ेगा, जस्ट सी द काउंटर पार्ट रोहित शर्मा, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब तक कप्तान आगे नहीं आएगा, आपकी टीम आगे नहीं आ सकती। मधु शंका की बात करूंगा थोड़ा सा। मधु शंका का विकेट जेस्चर अगर दिखा सके हमजा, आपके पास मेरा ख्याल है कुछ पिक्चर्स पड़े हुए हैं मधु शंका के, कि मधु शंका इस जी जी जी, नो वरीज, नो वरीज, यू कैन जॉइन अस बैक रजन जी। मधुशंका के बारे में बताना चाहूंगा कि इन द वर्ल्ड कप 2023 उन्होंने बवूमा को पकड़ा पहले ओवर में, इमाम को पकड़ा सेकंड ओवर में। व्हाट अ ब्रिलियंट बॉलर ही इज। बाबर इन द फोर्थ ओवर, वार्नर इन द फर्स्ट ओवर, स्मिथ इन द फर्स्ट ओवर, और आज दोबारा गुरबाज को पकड़ा उन्होंने पहले ओवर में। लेकिन उसके बावजूद मधुशंका के इतने अच्छे स्पेल के बावजूद भी श्रीलंका की टीम बाकी मानदा प्लैंड अफगानिस्तान टीम के सामने कंट्रोल नहीं कर पाई। और अगर हम देख सके हमजा, अगर आप वो स्कोर बोर्ड की पिक्चर दिखा सकें जो जोनाथन ट्रॉट ने बनाया हुआ था। हमजा, कैन वी सी दैट बोर्ड? जी, अगर वो दोबारा बोल्ड आ जाए नजर, कि वो पिक्चर आपको दिखाएगी कि अफगानिस्तान की टीम प्लानिंग क्या कर रही है। दे हैव एक्चुअली, व्हाट डू आई बिलीव, दे हैव लर्न्ड अ लेसन फ्रॉम द एशिया कप, जहां उन्होंने मैसअप किया था, चेज में मैसअप किया था, उनकी कैलकुलेशंस खराब हो रही थी ड्यूरिंग द श्रीलंका मैच। लेकिन इस वर्ल्ड कप में दे चेज डाउन द 283 वर्सेस पाकिस्तान एंड नाउ 242 वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान के खिलाफ चेज करना, इट्स नॉट अ जोक। पाकिस्तान की पेस बैटरी, चाहे वो हारिस रऊफ हो या शाहीन शाह अफरीदी हो, इस टीम के खिलाफ चेस करना 283 इज अ ह्यूज सक्सेस। आई एम नॉट saying only on the words, I'm not saying only on the stats। इस बात का अंदाजा आप बखूबी इस बात से कर सकते हैं कि इस अफगानिस्तान गेम से पहले पहले जो पाकिस्तान गेम हारा है, 275 का टारगेट जब भी पाकिस्तानी बैटर्स ने दिया है आज तक, सिंस देयर इंडिपेंडेंस 1947, पाकिस्तानी बॉलर्स नेवर एबल टू लूज दैट टारगेट। पाकिस्तान के बॉलर्स ने हमेशा 275 एटलीस्ट ऑन द बोर्ड उसको डिफेंड किया है। ये कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने 275 रन कंसीड कर दिए हो और पाकिस्तान मैच हार गया हो। ये पहली दफा पाकिस्तान हिस्ट्री में हुआ है, जिसको मैं डार्क डे कहता हूं पाकिस्तान का, कि 283 पाकिस्तानी बॉलर्स डिफेंड नहीं कर सके। और ये देखें जी, बोर्ड हमजा ने जो दिखाया है, ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है। इस बोर्ड पे प्लानिंग देखें जोनाथन ट्रॉट की, वो मार्क कर रहे हैं टारगेट्स कि 50 ओवर्स में इतना, 100 पे इतना, 150 पे इतना, 200 पे इतना, और फिर वो बता रहे हैं कि लैग कितना कर रहे हैं वो। फिर एक जगह ग्रीन मार्कर से शो किया है कि एक्सीड कितना कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आई थिंक। लेकिन एनी हाउ, हैट्स ऑफ टू थिंक अफगानिस्तान क्रिकेट इज राइडिंग, विश देम गुड लक फॉर द फ्यूचर। एंड नाउ हमजा, व्हाट्स नेक्स्ट? Happening in few hours. Pakistan will meet um, a local South Asian Derbyshire county. Pakistan versus Bangladesh. Both need that win badly. Both are down and under. Bangladesh are a bit far more, only 2 points. Pakistan up with 4 points on the seventh place. Let's see how that rolls out. And we will take Dr. Nan's thought about that. किस तरह इस मैच को वो देखते हैं, क्या वो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती भी देखते हैं, जो कि एक पाकिस्तानी फ़ैन काफ़ी अरसे से उस तलाश में है, एक कंट्रोवर्सी के बाद एक और कंट्रोवर्सी। अब तो ऐसा लगता है कि आखिरी मैच जीते हुए भी कुछ अरसा ही हो गया है। डॉक्टर नान। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान विल टेक ऑन बांग्लादेश इन द मैच नंबर 31 इन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ऑन अक्टूबर 31st। टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ अक्टूबर। और अगर आप ये ट्रांसमिशन हमारी एशिया में पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश में देख रहे हैं, तो आपकी आज, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये कल।
31st of October Pakistan will take on Bangladesh at Eden Gardens, Kolkata, India, जो पाकिस्तान का बड़ा फेवरेट ग्राउंड है। यहाँ पर पाकिस्तान ने भारत की टीम को वसीम अकरम की कैप्टेंसी में एक टेस्ट मैच में बड़ी यादगार शिकस्त दी थी। ये वही ग्राउंड है जहां पर पाकिस्तानी स्पीडस्टर शुएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को कंसेक्यूटिव डिलीवरीज में बोल्ड किया था 1990 की दिहाई में। और ये वही हिस्टोरिक ग्राउंड है जहां पर 80 की दिहाई में 1987-1986 के सीजन में पाकिस्तान की जानिब से जब इमरान खान टूर लेके गए थे इंडिया, तो सलीम मलिक ने एक बड़ी यादगार इनिंग्स खेली थी और एक अनबिलीवेबल मैच पाकिस्तान को जितवाया था यहाँ पे। और वो 7 डाउन आए थे और वहां से पाकिस्तान मैच इंडिया से छीन के ले गया था। तो पाकिस्तान का ये लकी ग्राउंड है कोलकाता, जहां पर लगभग तमाशाइयों के बैठने की तादाद 1,35,000 होती थी एक जमाने में। यहाँ पर रिलायंस कप 1987 वर्ल्ड कप का ग्रैंड फिनाले भी खेला गया था, 1987 का फाइनल, जहां पर टीम ऑस्ट्रेलिया ने 7 रन से इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, जो शॉर्टेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप फाइनल्स है बिफोर 2019 वर्ल्ड कप। तो ये बड़ा हिस्टोरिक ग्राउंड है क्योंकि ये साउदर्न बे ऑफ बंगाल के बहुत करीब है। तो उम्मीद है कि बहुत से बंगाली फैंस आए होंगे और बांग्लादेश फैंस आए होंगे। और ये ईस्ट पाकिस्तान के बड़ा करीब, जो ईस्ट पाकिस्तान माजी में हुआ करता था उसके बड़ा करीब है। बड़ा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट शहर है ये। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन जो मैचेस हुए हैं, टोटल 38 मैचेस हुए हैं अब तक। 38 मैचेस खेल चुकी हैं दोनों टीमें, जिसमें से पाकिस्तान का बल्ला भारी है। 33 मैचों में पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त दे चुका है, जबकि 5 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड कप गेम्स की, तो वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ एक ही मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और वो मैच 1999 का वर्ल्ड कप मैच था, जिसमें पाकिस्तान को मैच हारने के बाद बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दे दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, बहुत बड़ा मैच था, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश की टीम के लिए बड़ा यादगार। मई 1999 में ये वाकया हुआ था, जहां पर पाकिस्तान की वसीम अकरम की टीम उनसे लास्ट लीग मैच हार गई थी इंग्लैंड के वर्ल्ड कप के अंदर। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं अपकमिंग मैच में, दे आर कमिंग इनटू द सीक्वेंस आफ्टर द 4 कंसेक्यूटिव लॉसेस। थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ है, एक नेल बाइटिंग फिनिश हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बाबर आजम की कैप्टेंसी में आड़े हाथों लिया जा रहा है। पाकिस्तान में फैंस बहुत नाराज है पाकिस्तान टीम से, और ऑलमोस्ट दे हैव बीन नॉट टेक्निकली बट वेरी नियर टू द एलिमिनेशन फ्रॉम द कंपटीशन। तो काफी टेंशन चल रही है। जबकि बांग्लादेश की बात करूं तो दे आर एंटरिंग इनटू द कॉन्टेस्ट ऑन द बैक ऑफ देयर 87 रन लॉस टू द नीदरलैंड्स। एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई उनको स्कॉट एडवर्ड्स की नीदरलैंड की टीम के हाथों, जो मिनोज हैं। और बंगला टाइगर्स विद ओनली 1 विक्ट्री इन द 6 मैचेस सो फार, currently finding themselves in the 9th position in the standings and having accumulated 2 points from the 6 games। तो बिल्कुल बॉटम पे है। शकीब अल हसन अपने कैरियर के एंड के ऊपर है। शकीब का कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आई डोंट थिंक सो दैट ही इज गोइंग टू प्ले एनी फर्दर वर्ल्ड कप। और पिच जो है एडन गार्डन्स की, वो बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन जो मैच आगे बढ़ेगा वो स्पिन को फेवर करेगी विकेट। और ये मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की वेदर रिपोर्ट जो मेरे सामने आ रही है, मैं देख के बताता हूं आपको कि 30 डिग्रीज है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यहाँ पर 40% है। मींस के बॉलिंग को भी हेल्प मिलेगी, लेकिन बैटिंग के लिए बड़ा सॉलिड ट्रैक होगा। और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन इस वक्त फॉर्म के अंदर है। ही हैज स्कोर्ड इन दिस वर्ल्ड कप 333 रन बना रखे हैं 6 मैचेस में एट द एवरेज ऑफ 66.6। और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो आल्दो के जो होना चाहिए ओडीआईज के अंदर ऑस्ट्रेलियन बैटर साउथ अफ्रीकन उन जितना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हिसाब से काफी बेटर है, 97.37। एंड ही हैज स्मैश्ड अ सेंचुरी एंड अ हाफ सेंचुरी एंड अ हाईएस्ट स्कोर ऑफ 131 नॉट आउट, जो इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने लगाया। जबकि बांग्लादेश की तरफ से महमूदुल्लाह, ही हैज स्कोर्ड 218 रन इन 5 गेम्स और उनके नंबर 1 स्कोरर हैं। उनका स्ट्राइक रेट 91.98 है, एवरेज 72.67। उन्होंने एक सेंचुरी बना रखी है। जबकि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के स्पीयर हेड फास्ट बॉलर, वो 13 विकेटें ले चुके हैं 6 मैचों में
और उनका बेस्ट स्पेल इन द टूर्नामेंट 5 for 54 और उनका एवरेज 22.76 है। शरीफुल इस्लाम बांग्लादेश के बॉलर, ही हैज टेकन 8 विकेट्स इन 6 गेम्स, उनका एवरेज 41.62 है। शरीफुल इस्लाम 3 for 75 इज द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस एट द आईसीसी वर्ल्ड कप। और जो लास्ट 5 ओडीआई मैचेस हुए हैं दोनों के माबैन, वहां पर बांग्लादेश का पल्ला भारी है और पाकिस्तान 2 दफा जीता है, जबकि बांग्लादेश ने रिसेंट पास्ट में जब पाकिस्तान क्राइसिस में था तो 3 दफा शिकस्त दी है। हाईएस्ट स्कोर जो इन 5 एनकाउंटर्स हुए हैं आखिरी, वो पाकिस्तान का था 315 और जो लोएस्ट स्कोर था वो बांग्लादेश का था। लास्ट 5 एनकाउंटर्स 193। टीम बैटिंग फर्स्ट जब दोनों के माबैन मैच हुआ तो 21 मरतबा टीम जीती जो पहले खेल रही थी और 2 दफा हारी जो टीम बाद में खेल रही थी। मीनवाइल चेजिंग साइड हैज वन 12 occasions एंड लॉस्ट 3 times in 15 मैचेस। और दिस इज इट फ्रॉम हियर। रजन जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रजन जी, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, हाउ डू यू सी टुमारोज गेम? Very frankly speaking, it is a very dicey game. Both the teams have suffered enough of losses. The only thing is, what I personally feel is, both the teams have to salvage some respect and also in the process show their fans that they can play good quality cricket under all odds and under tremendous pressure, irrespective of now. Names are not going to matter anymore as far as these two teams are concerned. Their past reputation, nobody is questioning them. But what they are in the park today, what they should do today, is more important than if they have scored 5 double hundreds also. Whether today they are going to bring something on the table for the back home fans or to the pundits of the game who are analyzing like us, will they get any solace from their poor performance in the entire tournament by both the teams? I am making it a strong point that unless and until these two teams, once again reiterating of their reputation, whether it is Babar, whether it is Shakibul Hassan, whether it is their fast bowler Rauf or Sharuf of Bangladesh, fast bowler, left-hander, they have now got a great opportunity in front of a good quality favorite teams in Calcutta at the famous Eden Garden, where Pakistan in the past has shown some brilliant performance. They have got great fan following in Calcutta, and Bangladeshi, as you mentioned few days back, neighbors to their country, the venue, it should be, according to me, a very good clash, irrespective of the table points or irrespective of anything, and also to salvage their pride, honor, and respect, which has recently dipped to a very great level. I'm extremely waiting very heavily to see at least from both the teams. Mahbudullah got 100. Wicketkeeper Rashid also got 100, Pakistan. But I want to see a good match where both the teams fight for 300 plus total, like what New Zealand and Australia played a great game with a margin as less than 5 runs or 10 runs. I wish both Pakistan and Bangladesh to let us see them play good quality cricket. This is जी my बिल्कुल take जी। on it. रजन जी ने जिस तरह बताया कि अभी जो रिकॉर्ड टोटल बना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में तो हाई स्कोर हुआ। हाईएस्ट स्कोर की जब बात की रजत जी ने तो ये कैसे हो सकता है कि आपको मैं हाईएस्ट स्कोर का स्टैट ना बताऊं, दोनों टीमों का जरूर बताऊंगा। पाकिस्तान टोटल ऑफ 385 for 7 at Dambola in 2010 is the highest ever score against Bangladesh in the ODI cricket। और बांग्लादेश 329 for 6 at मीरपुर 2015 is the highest score against Pakistan in the ODIs। जबकि लोएस्ट स्कोर जो है पाकिस्तान का 161, ये वो ही दिन है जिस दिन की मैंने बात की थी 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप 31 मई, जहां पर पाकिस्तान को मैच हारने के बाद बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिया गया। 161 एट नॉर्थ हैम्पटन में ये मैच हो रहा था और वर्ल्ड कप गेम थी। दैट्स द लोएस्ट एवर स्कोर इन द ओडीआई अगेंस्ट बांग्लादेश।
जबकि बांग्लादेश का जो लोएस्ट स्कोर है वो 87 है अगेंस्ट पाकिस्तान एट ढाका इन 2000 एंड दैट इज द लोएस्ट एवर अगेंस्ट मैन इन ग्रीन। जी हमजा। एक छोटा सा करेक्शन दूंगा। I am eagerly waiting for that match between Bangladesh and Pakistan, only to see some good quality cricket and the match New Zealand Australia once again, and also how Pakistan chased down against Sri Lanka. That's how cricket has to be played. I am no coach, but I can assure you, having seen a lot of cricket, I have never seen a World Cup as unpredictable as this World Cup. For the prediction of being unpredictable, we will go towards our table. India has set himself on the chart. Sure, we can look into it. Absolutely. Hold on for a moment. है क्योंकि अफगानिस्तान आज का मैच जीतने के बाद कुछ एक जोन ऊपर निकल गया है, बाकी टीमों में चेंजेस नहीं आई। टॉप 4 टीम्स वही हैं, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, लेकिन अफगानिस्तान उसके बाद नीचे पाइपलाइन में आ गया है, जबकि इंग्लैंड जो है मजीद एज के ऊपर पुश हो गया है, लास्ट में चला गया है। अब इंग्लैंड के लिए ये भी खतरा बन गया है कि वो अगली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते। आई थिंक पॉइंट्स टेबल हमजा लेके आ गए हैं। जी हमजा बताइए। जी जी After seeing the points table, England, the defending champion, now and the wooden spoon. It's my unpredictable analysis was based on that, and it is absolute shocking. The originators of the game now is on the extinction list from this world's global sport of cricket. जी बिल्कुल, मैं रजन जी की बात में थोड़ी-सी एक और एडिशन कर दूँ कि जिन्होंने क्रिकेट शुरू की, वो बॉटम में आ गए और वही मैं कह रहा हूँ। जिन सब कॉन्टिनेंट की नेशंस की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, तो तीनों उनकी गुलामी में रहे। अफ़गानिस्तान इज़ द ओनली नेशन जो जी उनकी जी, गुलामी में नहीं रही। दैट इज तो व्हाट आई सेड, देयर ब्लड में है, वो फाइटर्स है। वो वो एक अकेली नेशन थी जो गुलामी में नहीं रही, लेकिन एनी हाउ उन्होंने क्रिकेट उनसे ओरिजिनेट नहीं हुई, उनकी सारी क्रिकेट तो पाकिस्तान से आई, उन्होंने तो सब क्रिकेट अरे पाकिस्तान में सीखी। वो भी मैंने रावल कहा आपको पिंडी। कि पाकिस्तान ने उनको क्रिकेट खेलना सिखाया हम्म। और हिंदुस्तान में आके मैच्योर हो गए और अभी सभी को बीट कर रहे हैं। हम्म। जी हमजा, अब प्रोग्राम को क्लोज करना होगा। मुझे बताइए कि आप बैक हैंड स्टूडियो टीम किलर फैक्टर का म्यूजिक प्ले कर सकती है कि नहीं कर सकती? अगर आप म्यूजिक को प्रेस कर सके और हम देखें कि क्या उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। और मिलती है तो पाकिस्तान टीम को जरूर एक बार सुनाइए। जी बिल्कुल जी रजन जी, किलर फैक्टर का म्यूजिक ऑन हो चुका है और मैं आपको एक किलर फैक्टर का म्यूजिक के पीछे एक स्टैट देना चाहता हूँ जो बड़ा ही अमेजिंग स्टैट है। जो गेम हुआ अभी हाल ही में इंडियन टीम और इंग्लैंड के माबैन, वहां पर विराट कोहली और जो रूट, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन और चोटी के बल्लेबाज, दोनों खिलाड़ी 0 रन पे आउट हुए। विराट कोहली ने भी बनाया शून्य और जो रूट ने भी बनाया शून्य। This is the first time in the 48 years history of cricket World Cup
that both the number 3 batters in the match have fallen for a duck. आज से पहले 48 साल हिस्ट्री में वर्ल्ड कप क्रिकेट की वन डाउन थर्ड बैट्समैन आपका आज तक जीरो पे कभी आउट नहीं हुआ। एंड जहां पर ये जीरो पे आउट हुए दोनों, जोर उड़ तो चलो होते ही रहते होंगे, लेकिन विराट कोहली के लिए बड़ी मायूब बात थी क्योंकि उनके ओडीआई कैरियर की ये पहली डक थी वर्ल्ड कप के अंदर। जी, और अगर मैं बात करूं विराट कोहली की डक्स की अक्रॉस ऑल इंटरनेशनल फॉर्मेट्स टीम वाइज, तो आप हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे कि विराट कोहली की इंग्लिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा 11 डक्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के Absolutely खिलाफ correct. 6 And डक्स हैं। Anderson was greatly responsible for that. यस, इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 11 डक्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 डक्स हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 डक्स हैं, श्रीलंका के खिलाफ 4, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2, पाकिस्तान के खिलाफ 1 जो मोहम्मद आमिर ने दी, आयरलैंड के खिलाफ 1, बांग्लादेश के खिलाफ 1, जिम्बाब्वे के खिलाफ 1, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर ओनली 1। जी सर हमजा। एक क्वेश्चन आपने मेरे को इंस्टिगेट किया, मेरे को पूछना पड़ेगा, इज मोहम्मद आमिर अ बेटर बॉलर और मच फेम्ड शाहीन शाहिद अफरीदी? प्लीज लेट मी नो। अगर मैं देखिए, असल में रजन जी मुझे लगता है कि शाहीन के पास अभी काफी लंबा कैरियर है और उनके कैरियर का ये स्टार्ट है। अगर आप स्पीड के बारे में बात करें, आमिर साहब खेलने आए तो 17 और 18 साल की उम्र में उन्होंने जो बॉलिंग किया, मैं बहुत बड़ा कायल हूँ उनके बॉलिंग का। मुझे बड़ा अफसोस है वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्योंकि वो जब बॉलिंग को आते थे तो मेरी पूरी आंखें बड़ी हो जाती थी और मैं सिर्फ भगवान से दुआ यही मांगता था कि इसके 3 ओवर तो भी निकल जाए, नहीं तो वो एक ट्रॉफी जिता के लेके जाएंगे। वो जी, थे क्योंकि आमिर मुझे साहब। लगता है कि अगर आप बॉल की मूवमेंट की बात करें कि बॉल को मूव करना, सीम को मूव करना, तो आई थिंक कि मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ जो है वो शाहीन बहुत से बड़ा ज्यादा नाम ले लिया कैपेबल है बॉल सर, की बहुत बड़ा मूवमेंट नाम की। ले लिया। मोहम्मद आमिर के साथ में आरिफ की, बहुत बड़ा बॉलर, ग्रेट बॉलर अकॉर्डिंग टू मी, अनफॉर्चुनेटली रिस्ट्रिक्टेड फॉर जी, वेरियस मोहम्मद रीजन। आसिफ जो है उनमें जो यूनिक एबिलिटी थी बॉल को अंदर और बाहर निकालने की विद अ न्यू बॉल, दैट वाज द अमेजिंग एबिलिटी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज द हिस्ट्री व्हाट पाकिस्तान टैलेंट हैज बीन गोइंग फॉर। थैंक यू both वेरी of मच। थैंक यू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। एंड मोहम्मद आसिफ पे बात आई तो मैं एक छोटा सा फैक्ट पेश करता जाऊं कि मिसबा उल हक, जिसकी कैप्टनसी में वो बहुत अरसा खेले, उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में पेश की। उन्होंने कहा कि वो मुझे हर बॉल मिड ऑन पे या मिड ऑफ पे, मैं जहां भी खड़ा होता था, मुझे बता के करते थे कि ये बॉल मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप रखूंगा और ये 12 इंच अंदर आएगा। और मैं हैरान होता था, बॉल उतना ही अंदर आता था, और वो कहता था अब यही बॉल उधर ही रखूंगा, बिल्कुल सीधा विकेट कीपर को जाएगा और ये लीव कर देगा। और वो जो कहते जाते थे उस तरह वो करते जाते थे। अनफॉर्चुनेटली some of the great bowlers got restricted because of various reasons we won't be discussing today, but we were hoping Pakistan. Sure. बात बताई मोहम्मद आसिफ की, तो मोहम्मद आसिफ ने भी एक और बयान भी दिया है, पता नहीं रजन जी की नजर से गुजरा नहीं गुजरा, वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को चैलेंज करता हूं कि वो मेरे अगेंस्ट एक ओवर खेलें और आई वोंट लेट हिम स्कोर। कि वो यूएस में कोचिंग कर रहे हैं शायद, कैलिफोर्निया, शिकागो, नहीं, वहाँ हूस्टन, पे। ही इज इन हूस्टन, हूस्टन, इन द हूस्टन, साउदर्न हूस्टन। साउदर्न अमेरिका, मेरा मेरा हूस्टन। मेरा कजिन का बेटा वहाँ क्रिकेट खेलता है, तो मैंने बोला एक बार कैसा भी करके उनसे जाके मिलो। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ मॉडर्न इरा who had to restrict his career due to varying reasons. What a bowler, what a champion. And Mohammad Amir, absolutely brilliant. I mean, I will not accept that even any of your present bowlers, irrespective of speed, swing, anything, can match to that short career of his, and he is doing brilliant. Why can't you take him in the team for one tournament after training him for 3 months? He will जी still रजन do जी, wonders. उसका जवाब तो To resign as a chairman. What a tragedy.
It's I mean very painful. Comments. Thank you very much, both of them, for joining. Let's have a very good match in few hours' time. Pakistan will meet Bengal Tigers in Eden Gardens, Calcutta, and we will join all of you tomorrow after the Pakistan-Bangladesh match and carry on from there. Keep watching N6 TV, N6 Facebook, and N6 YouTube page. Signing off from Match Point, your host Hamza Alai and our sports analysts, Dr. Adnan Khan and Rajan Nairji from Nagpur, India, have joined us. Thank you very much. Pleasure talking to you, gentlemen, as always. And take good care. Thank you very much. And I thoroughly enjoyed talking to you. Thank you, sir. Thank you, sir.